Okay. So students, I hope all of you can hear my voice properly. My voice is clear. एक बार comment section में बता दो कि मेरा आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं. But should just let me know in the comment section that whether you all can hear me properly or not. Okay. So very good afternoon to all of you. कैसे हो आप सब? आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस तुम्हारे सीएसआर के परसेप्शन से या टाइफर के परसेप्शन से या गेट के परसेप्शन से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो एस्पिरेंट्स हमारे पास हैं और वो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम लोग जो 2024 में जून में एग्जाम होने वाला है सीएसआर का उसके लिए प्रिपरेशन लेंगे, तो उन सारे बच्चों के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा ऑफर है। ये ऑफर ऐसा है कि मान लो कि इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो, दैट इज द होल कोर्स जिसका प्राइस है 33,999, दैट इज 34,000। वो कोर्स आपके लिए अवेलेबल किया जा रहा है at a price of 11,665. So I think this is a very good opportunity for all those students जो लोग सोच रहे हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा है तो इसलिए नहीं लूंगा, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लूंगा, तो घर से खुद से पढ़ लूंगा, तो उनके लिए I think it's a good opportunity that this whole course is made available for you people at such a low cost. So definitely be a part of the super coaching family and this group family and do prepare with us and let's achieve the success together. So today we're going to solve a few questions. Oh, और एक बात मैं बता दूं कि अगर if you wish to avail this offer, then actually avail the discount or something, then you have to use a promo code which is Sourav, S-O-U-R-A-V, which is my name, and then you can avail this offer. And one more thing, it's a limited time offer, so do hurry up. So this is the question. We're gonna come to this question at some later point of time. But first of all, I have a bigger fish to fry. So let's try with this. एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गेट में भी आया था, बट मतलब मैं पूरा क्वेश्चन को लिखना चाहूंगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि the question says one half of the region between two thin concentric metallic spherical shells, one half of the region between one half of the region between two thin concentric metallic spherical shells, two thin concentric metallic spherical shells, two thin concentric metallic spherical shells of radii A and B, or radii A and B, जहां बोल दिया गया है कि B is greater than A, very good, is filled with a dielectric of relative permittivity, is filled with a dielectric of relative permittivity epsilon r1, and the other half is filled with another dielectric, and the other half is filled with another dielectric, is filled with another dielectric, is filled with another dielectric of relative permittivity of relative permittivity of relative permittivity epsilon r2, epsilon r2. Now we can say
that a charge class Q is placed on the inner shell. A charge class Q is placed on the inner shell. Charge class Q is placed on the inner shell. Is placed on the inner shell, and the outer shell is grounded. And the outer shell is grounded. Outer shell is grounded. Okay. Find the capacitance C of the system. पूछा गया है find the capacitance C of the system. तो भाई बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर दिखने में कैसा है सर? देखो भाई बहुत ही आसान सी चीजें हैं। ये तुम्हारे पास एक स्फीयर है, एक सेकंड रुक जा। ये तेरे पास एक स्फीयर है, पता नहीं कैसे ही बन रही है इस पेन से। Hang on. That one I think you can take more or less as a sphere. It was going right, but later on we can. So this is a sphere. This is a sphere and there is another sphere like this. अब इन स्फीयर के आधा रीजन में, ये आधा रीजन में मैंने क्या किया है भाई, एक डायरेक्ट्रिक दिया है। ये आधा रीजन में मैंने एक डायरेक्ट्रिक दिया है और इस वाले के आधा रीजन में मैंने एक दूसरा डायरेक्ट्रिक दिया है। इस वाले के आधा रीजन में मैंने एक दूसरा डायरेक्ट्रिक दिया है। अब ये जो बना है कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझसे पूछा गया है कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। और एक चीज यहाँ पे बोल दिया गया है दैट इज द आउटर स्फीयर इज ग्राउंडेड। ये वाला जो स्फीयर है सर, इसको हमने ऐसे ग्राउंड कर दिया। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैपेसिटेंस क्या होगा ये मुझसे पूछा गया है। अब कैसे निकालेंगे इसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा? देखो सबसे अच्छी जो बात है यहाँ पे इस प्रॉब्लम में वो ये है कि इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बार पी और क्विज में आ गया, गेट में आ गया है, सीएसआई नेट में तक आया नहीं, तो इस बार आ सकता है। अच्छा, तो अंदर वाले स्फीयर का रेडियस a है, बाहर वाले स्फीयर का रेडियस b है। वेरी गुड, बाहर वाला स्फीयर ग्राउंडेड है। दूसरी बात, यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक्स हमने दिए हैं सर, इन डायलेक्ट्रिक्स में एक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा एप्सिलॉन r1 है, दूसरे का हमारा एप्सिलॉन r2 है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है सर कि हमारे इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा। भाई मुझसे एक बात बता कि ये वाला जो कैपेसिटर है और ये वाला जो है, ये वाला तो ग्राउंड कर दिया है, इसका मतलब इसके ऊपर जो सारे पोटेंशियल है आउटर स्फीयर का, वो पोटेंशियल क्या है, जीरो। इनर स्फीयर का पोटेंशियल क्या है, मान ले कुछ एक पोटेंशियल होगा, तो इस स्फीयर और इस स्फीयर के बीच में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ that the potential difference between two spherical plates, I can write the potential difference between two spherical plates is constant throughout, is constant throughout. पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले छोटे वाले स्फीयर और बड़े वाले स्फीयर के बीच में हमेशा कांस्टेंट, डजंट मैटर वो इस डायलेक्ट्रिक में है या इस डायलेक्ट्रिक में है। यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल जो है, यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल वही है।
तो इस छोटे वाले स्फीयर और बड़े वाले स्फीयर के बीच में पोटेंशियल जो है वो हमारा क्या है सर, कांस्टेंट है। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स, द electric field at all the points which are equidistant from the center, which are equidistant from the center, which are equidistant from the center. The electric field at all the points which are equidistant from the center, at all the points which are equidistant from the center, will be same. Will be same. Will be same. Regardless of whether regardless of whether regardless of whether the point lies in dielectric 1, the point lies in dielectric 1 or in dielectric 2। तो भाई हमसे ये चीज कहा गया था कि सर हमारे यहाँ पे जो इनर स्फीयर है और आउटर स्फीयर है, ये जो सर हमारा यहाँ पे इनर स्फीयर दिख रहा है और ये जो हमारे यहाँ पे आउटर स्फीयर दिख रहा है, ये दोनों स्फीयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो सर हम लोग मान सकते हैं कि इनर वाले स्फीयर के जो सेंटर है, इन दोनों के जो कॉमन सेंटर है उससे सेम रेडियल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी डिपेंड नहीं करेगा कि वो इस मीडियम में है या इस मीडियम में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम होगा फ्रॉम द सेंटर टू at a certain radial distance. So if from center I am trying to find out the electric field at r, so for all the values of r starting from here to here, for all the values of r, the electric field will have the same value. It means that what I'm trying to say is that the electric field will have a radial symmetry. जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि electric field will have a radial symmetry. The electric field will have a radial symmetry. Okay, so हम लोग लिख सकते हैं कि let us consider a concentric sphere, a concentric sphere of radius r, of radius r, जहां पर बोल दिया गया r is greater than a but less than b, r is greater than a but less than b, ये बोल दिया गया है। अब d1 अगर मान ले कि यहाँ पे ये मेरा सिनेरियो है, ये एक स्फीयर है, ये हमारा दूसरा वाला स्फीयर है, ठीक है, और ये बड़ा वाला स्फीयर है, और इन दोनों के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक है मान ले, इसको हाइलाइटर से कर सकते हैं, एक को मैं ऐसे दे सकता हूँ, so this is one dielectric, this is one dielectric which is placed over here, and this is another one.
दिस इज अनदर डायरेक्ट्रिक। तो ये जो दो डायरेक्ट्रिक हैं, इन दोनों डायरेक्ट्रिक के लिए मैं अब सॉल्व कर, ठीक है भाई, इन दोनों डायलेक्ट्रिक के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज वन डायलेक्ट्रिक, दिस इज अनदर डायलेक्ट्रिक। तो यहाँ से डिस्टेंस आप मैंने एक कॉन्सेप्ट इस तरह कंसीडर किया है। मान लो ये जो है ये मेरा मीडियम 1 है और ये जो है ये मेरा मीडियम 2 है, ठीक है। तो डी वेक्टर इन डायलेक्ट्रिक 1 दैट इज D1 जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इन डायलेक्ट्रिक 1, उसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r1 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। दूसरी बात, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड, और जो तुम्हारा d2 वेक्टर होगा इन डायलेक्ट्रिक 2 दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r2 इनटू e वेक्टर। अब e इज सेम एवरीवेयर, घटाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग करें कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ d डॉट ds is actually equals to q free that is qm, तो ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे मैंने एक सरफेस लिया है तो और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे E है, तो बेसिकली E has a radial symmetry, तो E dot ds is equals to E ds. Now just because at the same distance r the value of E is same, I can take E outside of the integral sign, so I can just write down, हालांकि E का वैल्यू सेम हो जाएगा बट एप्सिलॉन नॉट E एप्सिलॉन नॉट E का वैल्यू सेम हो जाएगा बट बाकी चीजें सेम नहीं है, तो ओवर द हाफ स्फीयर ये क्या आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट E एप्सिलॉन r1, सर ये हाफ स्फीयर के लिए है, तो हाफ पूरा स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर, तो हाफ स्फीयर के एरिया कितना होगा, हाफ स्फीयर के लिए एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट E इनटू एप्सिलॉन r2 इनटू 2 पाई r स्क्वायर, दैट शुड बी एक्चुअली इक्वल्स टू योर q। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस, ओवर द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस, बट सर ये जो सरफेस इसमें आधी जगह पे हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r1 है और आधी जगह पे एप्सिलॉन r2 है, तो इसके लिए आधी जगह के लिए 2 पाई r स्क्वायर, बाकी आधी जगह के लिए 2 पाई r स्क्वायर। तो यहां से जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ रहा है वो वैल्यू क्या है, यहां से मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ रहा है सर E इक्वल्स टू, देखो 2 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कॉमन चला जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर कॉमन चला जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2, तो आई कैन राइट दिस एज, अगर मान लो कि इसके अंदर में जो चार्ज है उस चार्ज में कैपिटल Q मान लो कि कैपिटल Q चार्ज लिया गया है, तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या है भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ पे r स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड देन आई कैन राइट एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, दैट इज व्हाट माय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है तो बाकी चीजें भी मैं कर सकता हूँ, कैसे करूंगा भाई, अब चलो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, POTENTIAL पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं दैट इज VA माइनस VB, हम मान रहे हैं कि छोटे वाला जो स्फीयर है वो हमारा पॉजिटिव स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर नेगेटिव स्फीयर, नेगेटिव स्फीयर नाम आप उसका पोटेंशियल कम है ऐसा ही मान सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास है तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि VA का पोटेंशियल ज्यादा बड़ा है, VB का पोटेंशियल कम है VA के पोटेंशियल से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा A to B E डॉट dl, सही है, A to B E dot dl, I can write it like this, I can write A to B E dot dl। अब E जो है dl में है dr r कैप प्लस dr r कैप प्लस r d थ्री कैप प्लस r स्क्वायर d फाइव कैप लाइक दिस, तो यहाँ से r कैप वाला टर्म सर्वाइव करेगा और E का वैल्यू तुम्हें पता ही है डिस्टेंस r क्या होता है q by 4 pi epsilon naught r square epsilon r1 plus epsilon r2, तो इंटीग्रेशन A to B q by 2 pi epsilon naught r square into epsilon r1 plus epsilon r2 r square into epsilon r1 plus epsilon r2 multiplied by यहाँ पे dl को हम लोग लिख सकते हैं dr। Okay, if you wish, I can find out this electric field as q into r cap radial vector है तो इसलिए simply dr हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे dr by r square क्या आता है नेगेटिव 1 by r, नेगेटिव 1 by r मतलब माइनस 1 by b प्लस 1 by, so 1 by a माइनस 1 by b, तो यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हो q by
2 pi epsilon naught epsilon r1 plus epsilon r2 1 by a minus 1 by b, so b minus a divided by ab, ये आ जाएगा सिनेरियो। ठीक है भाई, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है और ये मेरे यहाँ पे चार्ज अगर मान लेता हूँ मैं Q है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, therefore कैपेसिटेंस C of this charge configuration would be something different, that will be actually equals to Q divided by VA minus VB। तो सर हमारे पास Q पता है क्या होता है, Q तो Q ही है, VA minus VB थोड़ा बड़ा आएगा, Q into V minus A divided by AB, B minus A divided by 2 pi epsilon naught AB, 2 pi epsilon naught AB into epsilon r1 plus epsilon r2 into epsilon r1 plus epsilon r2, that's all I can write। अगर इसको लिख रहा हूँ ये ऊपर चला जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 2 pi epsilon naught AB into epsilon r1 plus epsilon r2 whole divided by B minus A, that's all my capacitance is। That's all my capacitance is। तो ये प्रॉब्लम्स यूजुअली ऐसे करने होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे क्वेश्चंस पे ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं। बताओ यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। If you have any doubt regarding this, you people can definitely ask me। If you have any doubt regarding this, please ask me। बताइए, कोई भी डाउट हो बच्चों? बताओ। अगर डाउट नहीं है, so we can go to the next question, no issues। बताओ एक बार देख लो प्रॉब्लम को, अगर मेरे पे डाउट है तो बताओ, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बट आई वांट यू टू सी द एंटायर थिंग, ओके। देख लो, यहाँ से शुरू करो। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल ज्योमेट्री है, वो क्यू है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस का कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रेडियल ज्योमेट्री है, दैट मींस वेदर it is in the dielectric or in dielectric one or in dielectric, that doesn't matter, at the same radial distance from the center electric field will be same। अगर ये चीज हमारे पास है तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिया रेडियल ज्योमेट्री, उसके बाद तो सिर्फ गॉस थ्योरम लगा और प्रॉब्लम, बाकी उसके बाद तो प्रॉब्लम बहुत आसान, उसके बाद सिर्फ गॉस थ्योरम लगा। उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है। देख लो फिर एक बार।
Okay, so there's another question which says that two concentric spherical shells of radii R1 and R2 is uniformly charged. Two concentric spherical shells of radii R1 and R2, जहां पे R1 बोल दिया गया है R2 से छोटा है, ठीक है भाई, is uniformly charged to Q1 and Q2 respectively, is uniformly charged to Q1 and Q2 respectively. Q1 and Q2 respectively. Calculate the electrostatic energy of the system. Calculate the electrostatic energy of the system. Calculate the electrostatic energy of the system. इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल के दो, ये हमसे पूछा गया है, कैसे निकालेंगे? देखो, अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो जो चीज निकालना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यहाँ पे ये मेरा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, इसके बाहर और एक स्फीयर है, ये दो स्फीयर है, ठीक है। अब इन दोनों स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये मुझसे पूछा गया है। यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है दैट्स r1, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है दैट्स माय r2, दैट्स ऑल आई नो। तो अगर मैं बोलूँ ये मेरा रीजन 1 है, ये मेरा रीजन 2 है, दिस इज माय रीजन 1, दिस इज माय रीजन 2, दिस इज माय रीजन 3, तो इन रीजन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा भाई? सर देखिए, इलेक्ट्रिक रीजन 1 में कोई भी चार्ज इसके अंदर है नहीं, like if I draw a Gaussian surface in region R1, so it encloses no charge, therefore electric field is zero by summation. In region 2 सर क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा मान लो कि इस स्फीयर में चार्ज है Q1, इस स्फीयर में चार्ज है Q2, देयर से लाइक चार्ज में Q1 है, तो इस रीजन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट्स E is equals to Q1 by 4 pi epsilon naught into R square into R। और सर हमारा इन रीजियन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर Q2 by 4 pi epsilon naught R square, 4 pi epsilon naught R square। एक्चुअली बाहर में अगर एक गॉसियन सर्कल ड्रॉ करूं तो वो Q1 Q2 दोनों को ही एनक्लोज करेगा, तो इट विल बी Q1 प्लस Q2 दिस इनटू R, ठीक है। तो तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक energy of the system is integration, or U is equals to half into integration E dot D into theta। अब हालांकि हम लोग यहाँ पे पूरा फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो D is equals to epsilon naught into E, तो सिंपली epsilon naught divided by 2 इंटीग्रेशन ऑफ E dot D हमारा हो जाएगा E square into theta over all space। all space मतलब 0 to infinity, ऑल स्पेस का मतलब है सर 0 टू इन्फिनिटी की बात है। ऑल स्पेस मतलब हमारा डीवी वगैरह सब देख लो, तो यहाँ पे जो डीवी है, अगर मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है।
तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई स्क्वायर डी आर। अब सर यहाँ पे जो चीज बताने लायक है वो ये है कि सर r इक्वल्स टू 0 टू जब r1 था वहां पे इलेक्ट्रिक का वैल्यू 1 है, 0 टू r1 टू r2 में इलेक्ट्रिकल का वैल्यू अलग है, r2 से r3 इवन इट्स ग्रेटर देन r3 अगर है, r1 r2 0 इन्फिनिटी, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये वाला वैल्यू है E, और इन रीजन 3 यहाँ से यहाँ तक वैल्यू अलग है, ये रीजन 3 का वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वैल्यू नॉन 0, यहाँ पे नॉन 0, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा r1 टू r2 प्लस r2 टू इन्फिनिटी। वेरी गुड। इसको कैसे लिखूं भाई, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 और सिंपली आई कैन राइट इट 2 पाई एप्सिलॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट I can write integration r1 to r2 and then I can write e square into dr. E square मतलब q1 square by 16 pi square epsilon naught square r to the power of 4. q1 square by 16 pi square epsilon naught square r to the power of 4 into dr. इसको ऐसा लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कोई नहीं। dr प्लस हमारे यहाँ से r2 से इन्फिनिटी तक जाओ, q2 प्लस q1 स्क्वायर, q1 प्लस q2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, और नीचे तेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बता, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r to the power of 4, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r to the power of 4 into again dr। अब अगर हमारे पास ये चीज आ गया है भाई, तो इसका इंटीग्रेशन तुम करो, जैसे तुम इंटीग्रेशन करोगे तुम्हें क्या, एक तो 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन है दोनों में ही, बाहर निकाल, अगर इसको बाहर निकालते हो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर में पाई है, पाई से काटूंगा, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन से काटूंगा, तो नीचे पाई से काटूंगा, 2 से काटूंगा 8, तो हमारे पास रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सर है हमारे पास। यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा सर तो डेफिनेटली dr by r to the power of, तो r to the power of -3 r to the power of -4, तो r to the power of -4 प्लस में, तो r to the power of -3 by -3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है 4 पाई r स्क्वायर dr, तो यहाँ पे r स्क्वायर dr बैठेगा, dv में क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर dr, तो यहाँ पे dr इक्वल्स टू ये r स्क्वायर dr, यहाँ पे भी है हमारा r स्क्वायर dr, देख r स्क्वायर से यहाँ पे r स्क्वायर 4 कटेगा तो r स्क्वायर रहेगा, और dr बाय r स्क्वायर मतलब कितना होता है, r स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस वो नेगेटिव 1 बाय r, तो -1 बाय r होके इंटीग्रेशन का लिमिट बैठेगा r1 टू r2, ठीक है, और यहाँ पे q1 स्क्वायर है प्लस यहाँ पे हमारा -1 बाई r होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ये हो जाएगा r2 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा तुम्हारा q1 प्लस q2 का स्क्वायर। अब जैसे ऐसे कर देते हैं तो देखना नेक्स्ट पेज में तुम्हारा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस पाई एप्सिलॉन नॉट, and this thing would become actually 1 by r2, तो 1 by r1 minus 1 by r2 into q1 square, q1 square into 1 by r1 minus 1 by r2, then plus q1 plus q2 square into, क्या लिख सकते हैं भाई, नेगेटिव ऑफ 1 by infinity which is 0 minus minus plus 1 by r2, simply just divided by r2, that's all I can write। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं।
बताओ, if you have any doubt till now you can tell me. If you have any doubt till now you can tell me. अच्छा देखो, इसके बाद और एक क्वेश्चन करा लेता हूँ मैं। इसका एक बार देख लो इस कैलकुलेशन को। Okay, we can do this. बोला गया each plate of a parallel air capacitor has an area A. क्वेश्चन में बोला गया है कि each plate of a parallel plate air capacitor has an area A. Each plate of a parallel plate air capacitor has an area A. What amount of work has to be performed? What amount of work has to be performed? Has to be performed to slowly increase the distance between the plates from x1 to x2. To slowly increase the distance between the plates from x1 to x2, to slowly increase the distance between plates from x1 to x2, if हम लोग कह सकते हैं number A, that is the charge of the capacitor which is equal to Q if the charge of the capacitor, it's Q. Number 2, if the voltage across the capacitor, जो है हमारा U is kept constant in the process, is kept constant in the process. अच्छा, एक चीज हमें पता चला वो ये है कि हम लोग दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, और हम दो तरीके से बढ़ा रहे हैं। पहले तरीके में क्या कर रहे हैं, हम जो प्लेट में चार्ज है उसको कांस्टेंट रखें। तो अगर प्लेट का चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट का चार्ज अगर कांस्टेंट है तो बैटरी कनेक्टेड नहीं है, दो प्लेट के बीच में बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए चार्ज कांस्टेंट। तो प्लेट के बीच में अगर चार्ज कांस्टेंट है तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा। दूसरी केस में हमने क्या किया है, प्लेट के बीच में पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा है, मतलब बैटरी को लगा के रखा है हमेशा, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा ऑफ कोर्स। तो उस टाइम पे हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, वी कैन डू इट। तो यहाँ पे देखो,
पार्ट ए में क्या है, इनिशियल जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, देखना इनिशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, जो तेरा आएगा इनिशियल चार्ज अगर क्यू है तो क्यू स्क्वायर बाई टू इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई एक्स। फाइनल एनर्जी कितना होगा भाई, क्यू स्क्वायर बाई अगेन टू सी, दैट मींस फाइनल चार्ज क्यू ही रहेगा क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, बाई टू इंटू, सर यहाँ पे एक कैपेसिटेंस चेंज हो गया है, कैपेसिटेंस से एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई एक्स टू। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर दो तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो मिल जाएगा क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एक्स टू माइनस एक्स वन, ये है वर्क डन, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखता हूँ तब क्या होगा, अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखता हूँ तब क्या होगा, तो देखो इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू आई क्या हो जाएगा, सी इंटू सी इनिशियल इंटू वी, सी इनिशियल इंटू वी, जो हमारा आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई एक्स वन इंटू वी। ठीक है, दूसरी बात फाइनल चार्ज on the capacitor is my q final is equal to c final into v, that's epsilon a by x2 into v, ऐसा लिख सकते हैं। इनिशियल चार्ज हमें मिल गया है, फाइनल चार्ज हमें मिल गया है। अच्छा हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ठीक है, बट हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या होगा, हाफ सी फाइनल वी स्क्वायर माइनस हाफ सी इनिशियल वी स्क्वायर। अब जरा देख तो भाई यहाँ पे हाफ सी फाइनल इंटू वी स्क्वायर हाफ सी इनिशियल, तो वी स्क्वायर बाई टू को बाहर ले लो, सी फाइनल है तुम्हारे एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई एक्स टू माइनस सी इनिशियल एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइडेड बाई एक्स वन, तो बेसिकली हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए वी स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, वन बाई एक्स टू माइनस वन बाई एक्स वन, वन बाई एक्स वन, ये सिनेरियो है। अच्छा देख x2 बड़ा है तो 1 by x2 छोटा होगा, ये चीज एक्चुअली बड़ा होगा, तो ये जो एनर्जी है दिस इज द एनर्जी व्हिच इज द सिस्टम हैज लॉस्ट, एनर्जी इज नेगेटिव, तो बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा उस टाइम, बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, दिस इज लेस देन 0, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच हैज बीन डिक्रीज्ड, सो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो गया मतलब बाहर से देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी negative of delta U, that is epsilon naught a v square divided by 2 into 1 by x1 minus 1 by x2. That's all I can do. बताइए प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि नहीं, tell me if there is any issue you can tell me. Okay, Chandan is there, very good afternoon Chandan, बताओ। Any questions from the students? Okay then, thank you very much.